So, hello everyone. So, today we will discuss the numericals of gravitation. Yes, this is the third lecture, and the numericals are based on the Newton's first law of Newton's gravitation law. Yes, so let's start today's lecture, and we will be discussing all numericals in today's lecture. No theory, no other thing, only numericals are solved. Yes. Numericals, ठीक है. So let's take the question number 1. So what's the question number 1 says is that I'm drawing a figure for that. Let's say there is a particle. Let's say there is also a particle. There is also a particle, and there is also a particle. Yes, these are four particles, equal masses. Let's say m. So it has m mass. It also has m mass, and m mass. Yes. Now these three particles make a triangle. So join it, and let's label it also A, B, C. Yes, A, B, C is the triangle, and D is the midpoint. This D, where this particle is placed, is the midpoint. That is, this side is equals to this side, and also this median. Now, also this median is also equal to them. Yes, that is BD equals to CD equals to AD. This is given. AD equals to BD equals to CD. Yes, AD equals to BD equals to CD is given, and AB BC और हमें मतलब जो लेंथ मतलब वगैरह जो चीज़ें हैं वो क्या कुछ ऐसा है कि ये D है, ये भी D है, तो ये भी D है. लेट कर लेते हैं हम. ठीक है, D, सो ये भी D, सो ये भी D. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन or net force of gravitation on a पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो रहा है, वी हैव टू फाइंड दैट. सो हाउ कुड वी फाइंड दिस आउट? यस, सॉल्व करिए. मैं थोड़ी देर तक वेट करता हूँ. सॉल्व करिए. बी डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू सी डी दे रखा है. these are all d values. Masses are same. Yes, you have to find the force of gravitation on particle A due to B, D and C. Yes, this is 90 degree also. If you confused about this is 90 degree. Solve this question on your own, then I will solve. So let's start solving this question. So this question can be solved within a second. Yes, within a second this question can be solved. But first of all, I will do the long method, then I will do the shortcut method. And the shortcut method is through the uh, long cut method. Yes, so first of all, the tip or the hint, whatever you call it, for this question is that force is a vector. ये चीज़ अगर कोई भूल गया, भूलते तो नहीं है वैसे हम, फोर्स इज अ वेक्टर, बट कोई ये चीज़ अप्लाई करना यहाँ पे भूल गया, सो उसका क्वेश्चन गड़बड़ हो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? ग्रेविटेशन फोर्सेस निकालने हैं. बी डी सी क्या क्या करेंगे ए के ऊपर. ठीक है, सो उसके लिए वी हैव टू find out this AB and AC. So this can be easily find out by Pythagoras. You can apply Pythagoras. So this D, so this becomes root 2 times D. Yes, this becomes root 2 times D. बिल्कुल, ये रूट टू टाइम्स डी, ये भी रूट टू टाइम्स डी. हमारे पास ए सी भी आ गया, ए बी भी आ गया. ठीक है, सो पहले हम ये वाला फोर्स निकाल लेते हैं. ठीक, सो ये वाला फोर्स कैसे निकलेगा? बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ. एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2, यानी कि दोनों मास सेम है तो m का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन रूट टू डी का स्क्वायर
2d² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2d का स्क्वायर 2d², यस। सो दिस इज f on A due to B, ठीक है, you can write it as this, yes. Now similarly force on C, force on A, sorry, force on A due to C is equals to, ये भी बिल्कुल वही होगा क्योंकि सिमिट्री है, ठीक है। सो gm² अपॉन 2d², ठीक है। हमने ये दोनों फोर्स निकाल लिया। अब ये वाला तो बहुत ही आसान है, सो ये भी निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन A ड्यू टू D इज इक्वल टू gm², m इंटू m² अपॉन, ये सिर्फ D है, सो D का स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या आता है √2, तो √2 का स्क्वायर भी आता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। सो ये आ गया आपके पास तीनों के तीनों फोर्सेस, F ऑन A ड्यू टू B, F ऑन A ड्यू टू C, F ऑन A ड्यू टू D। बट आप क्या करोगे, जल्दबाजी में ये सब ऐड कर दो तो नेट फोर्स आ नहीं, ऐसा नहीं करना, इसको ऐड नहीं करना सीधा, बिकॉज फोर्स इज़ अ वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे वेक्टर्स का थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एंगल चाहिए ये वाला। सो ये वाला एंगल कितना आएगा, इफ़ यू नोटिस दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, so this is an isosceles triangle and also it's an right angled isosceles triangle. So in right angled isosceles triangle one angle is 90 degree, other two are 45 degree each. So this is 45, this is also 45. Yes, I hope you get that, how this angles are 45 degree. Now since they are 45 degree, we have three vectors, one is there and one is there. So first of all we draw a vector diagram, ठीक है, एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, दिस फोर्स अप्लाइड दैट वे, दिस फोर्स इज अप्लाइंग दैट वे, दिस फोर्स इज अप्लाइंग इन दैट वे, यस। दिस इज द फोर्सेस, फोर्स AB, फोर्स AD, force AC. I hope you understand this. I have just drawn the vectors, ठीक है, I have just drawn the vectors. इसको थोड़ा लंबा करना है तो कर लो, ये ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर कम है ना, ये फोर्स बड़ा होगा, ठीक है। सो यू कैन ड्रॉ दिस। नाउ एंगल बिटवीन देम इज 45। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप ये करें कि ये दोनों जो वेक्टर है ना साइड वाले, यू हैव टू सॉल्व और यू हैव टू, यस यू हैव टू सॉल्व रिजॉल्व, जो भी करना है इन वेक्टर्स का पहले करो। तो अगर आप ध्यान से सोचो, ये पूरा एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों, मैंने आपको कल बताया था, जब 60 डिग्री आए f√3, 90 डिग्री आए f√2, 60 डिग्री आए f का, सॉरी 120 आए तो f का f ही रहता है, ठीक है। सो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आ जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री का है दोनों के बीच। इन दोनों को देखो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को देखो, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बाइसेक्टर पर। सब चीज़ें याद रखनी है कि मैंने बताया था ना कि अगर ये 60 डिग्री है, इफ़ यू फॉरगॉट करना नहीं है वैसे, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये अगर f है, ये भी f है, तो ये f√3, याद है ना ये सब। तो वही चीज़ यहाँ पे लगानी है बस आपको, वही चीज़ यहाँ पे लगानी है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच में 90 डिग्री है, तो यहाँ से इनका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। आई होप यू सी दैट, यहाँ से इनका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में F ऑन A ड्यू टू D वाला वेक्टर बैठा हुआ है। सो F नेट क्या हो जाएगा, F नेट हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज FR वेक्टर लेट से प्लस F ऑन A ड्यू टू D वेक्टर। ये इक्वेशन आपकी बनेगी, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अब इसका ये कैसे निकालें, ये तो बताइए हमको, ये कैसे निकालें। ये निकालने का शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, f√2 है, ठीक। सो f√2 कैसे, मतलब यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई कर दो, बस मैग्नीट्यूड के साथ √2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो FR का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, सो √2 टाइम्स √2, ठीक, √2 टाइम्स √2। अगर आपको इसको कैंसिल आउट करना है, सो इसको पीछे सॉल्व करते हैं। सो हमारा FR वेक्टर कितना आ गया था, gm² अपॉन √2 टाइम्स
डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया था हमारा एफ आर वेक्टर। हमारा एफ ए डी वेक्टर क्या है, दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। नाउ एफ नेट क्या है, इन दोनों का सम, सो सम कर देंगे जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, वी हैव टू टेक कॉमन 1/√2 + 1। ठीक, ये आ गया आपका सीधा सीधा। बस यहाँ से आपको क्या करना है, जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √2 + 1 अपॉन √2, कुछ ऐसा। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक, दैट इज द नेट फोर्स मॉडुलस, net force on the particle A due to B, D and C। ठीक है, जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू √2 + 1 अपॉन √2। ठीक, ये तो उसका होगा लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड क्या था, शॉर्ट मेथड वहीं से निकला सिंपल सा कि वो दोनों 90 डिग्री पर थे, वो दोनों 90 डिग्री पर थे। सो जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, √2 सीधा कर दो प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अगर आप कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से शुरू होना, कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं अगर आप तो यहाँ से शुरू होना, सीधा आपका आंसर यहीं पे आएगा। देख सकते हैं आप, सीधा आपका आंसर यहीं आएगा। इसको कैंसिल करो, नहीं भी करना तब भी जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कॉमन लो, तो √2 अपॉन 2 + 1, सो √2/2 तो 1/√2 आ जाएगा। सो दैट्स द आंसर। ठीक है, सीधा यहीं से शुरू कर देना अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो एंड कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज प्रिटी मच क्लियर टू यू एंड यू गेव इट अ चांस, एंड आई होप कि आपका क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व हो गया था मेरे सॉल्व कराने से पहले। नहीं भी हुआ, डोंट वरी, अगर आपको अब समझ में आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, मैं अगला क्वेश्चन आपको देने जाऊँ। Now the next question coming up on our screen is this question number 2. Very interesting question I am taking. So the question is, let's say this is the axis. ठीक है, ये एक एक्सिस है, कोई भी आर्बिट्री एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस नहीं है, ये आर्बिट्री कोई भी एक्सिस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है ना, आपका x = 0 है। ठीक है, इसमें ठीक है, वाई एक्सिस ही मान लो अगर माननी है तो। ठीक, नाउ दिस इज ऑल्सो एक्सिस, मानना है तो एक्स एक्सिस भी मान लो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, मानना है तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो हो क्या रहा है, इस ओरिजिन पे एक मास पड़ा है। ठीक है, इस ओरिजिन पे एक मास पड़ा है, देन अबाउट d डिस्टेंस अनदर मास, अगेन अबाउट d डिस्टेंस अनदर माउस कह रहा हूँ मैं, मास, फिर d डिस्टेंस पे एक और मास। ठीक है, ऐसे करते करते कई सारे मास, कई सारे n नंबर ऑफ मासेस है। ठीक है, और सबका जो मास है वो इक्वल है, m nth पार्टिकल का भी मास m है। सो वी हैव टू राइट एन एक्सप्रेशन, राइट, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन ही आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू दे नहीं रखी। सो राइट एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखनी है हमको, राइट एन एक्सप्रेशन to find out the force of gravitation of the first particle due to all। ठीक है, तुम्हें एक एक्सप्रेशन लिखनी है। देखो पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में सब पार्टिकल्स एक लाइन पे, डी डिस्टेंस की दूरी पर है, एम का मास है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चीज़ है। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड nth। ठीक, सो वी हैव टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द force of gravitation experienced by this first particle due to second, due to third, due to fourth and so on। टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल। सो वो हम कैसे निकालें, इसमें एक जीपी बनती है, अगर मैं आपको बताऊं जीपी बनती है यहाँ पे। इफ़ यू नोट जीपी, वेरी गुड, नहीं पता कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है, क्लास 11 का एक टॉपिक। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल। ठीक है, खासकर जेई में तो आता ही है।
ऐसे कुछ नीट में भी कभी कभी आ जाता है, ज़्यादातर नहीं आता, जीपी लगता है ना इसमें, पर ठीक है आ भी जाता है। सीबीएसई के लिए ये क्वेश्चन हॉट्स लेवल का है, ठीक है। जेई के लिए तो ये सिंपल है। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि इसमें वेक्टर की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सारे एक ही लाइन में, सबको ऐसे ही प्लस कर दो, सबको ऐसे ही प्लस कर देगा, सिंपल सा ही है कि ये फोर्स इस पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है। हम यही मानेंगे कि ये इस पे फोर्स नहीं लगा रहा अभी फिलहाल, सारे के सारे बस इसी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान के चलेंगे, कोई हिल भी नहीं रहा, कोई मोशन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि इस गोल गोल घूमना शुरू हो गया। 2 स्टार सिस्टम नहीं है ये, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार नहीं है ये, स्टेशनरी पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। सारी सारी की सारी मैंने आपको सिचुएशंस बता दी है, ठीक है, आइडियल सिचुएशंस। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का निकालते हैं ग्रेविटेशन फोर्स कैसे आएगा। F/1 ड्यू टू 2 Gm² अपॉन d², ठीक। फिर उसके बाद इसका निकालते हैं F/1 ड्यू टू 3 Gm² अपॉन 2d हो गया, सो 2d का स्क्वायर 4d², 2d का होल स्क्वायर 4d²। सो फिर उसका F/1 ड्यू टू 4 Gm² अपॉन d 3d हो गए, 3 का स्क्वायर 9d², डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे ये चलता चला जाएगा। वी हैव टू जस्ट ऐड दिस, जस्ट ऐड, सबको ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना। सो इसको हम ऐड करते हैं F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n, ठीक है। 1n का समझ गए, F फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन 1 ड्यू टू n, ठीक है, ड्यू टू nth पार्टिकल, दैट मीन्स, ठीक है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भैया, मैं सीधा से एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा अभी, कॉमन ले लेते हैं पहले से, ठीक है। कॉमन क्या क्या चीज़ें आएंगी अगर आप देखो ध्यान से, g कॉमन आएगा, m² कॉमन आएगा, d² भी कॉमन आएगा, सब में देख लो, सब में देख लो, ध्यान से देख लो, सब में ये चीज़ कॉमन है। सो g कम्स आउट टू बी कॉमन, m² कम्स आउट टू बी कॉमन, d² ऑल्सो कम्स आउट कॉमन। अंदर क्या आ जाएगा, अंदर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, इसके प्लेस पे यहाँ पे 1 आएगा, 1/4 आएगा, 1/9 आएगा, 1/16 आएगा, 1 बाय करते करते 1/25, फिर उसके बाद 1/36, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। सो 1/1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एक अच्छी एक्सप्रेशन बनाने के लिए 1/1 कैसे बनेगी आपको सब खुद समझ में आ जाएगा। 1/4, 1/9 एंड सो ऑन। अब लास्ट में क्या जाएगा, 1/n², समझ पा रहे हैं, 1/n², 1 था, 2 था, 3 था, ऐसे कैसे, तो 1/nth का स्क्वायर जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कैसे निकलेगा, Gm² ये तो सेम आएगा, अपॉन देखो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये d प्लस डी प्लस डी प्लस डी, सो n टाइम्स d हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो n² d² कॉमन आ गया, Gm² भी कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 1/n²। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Gm² बटे में d², सो ये क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस सो ऑन एंड 1/n²। ये आपकी बस यहीं तक एक्सप्रेशन आपकी खत्म हो, ये आपकी एक्सप्रेशन है, ये लो भाई, ये आपकी क्या है एक्सप्रेशन, सीधी सादी सी साफ सी एक्सप्रेशन ये आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो और ये क्या था, Gm² अपॉन d², दैट इज फोर्स 1, ये वाला फोर्स था, तो आप उसको इंटू कर सकते हो यहाँ पे और अच्छी एक्सप्रेशन लिखने के लिए। अब जैसे MCQ में दे रखा हो वैसा करो, 1/1 प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² प्लस डॉट डॉट 1/n²। अब देखो यहाँ पे जीपी बन रही है क्या, जीपी बन रही है ना यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, है ना, बन रही है ना जीपी, यही है चीज़, यही है चीज़। ये आपका सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, ये ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी इक्वेशन हो। अब आपको अगर न्यूमेरिकल टाइप में आएगा फिर वो कैसे देगा, ये तो मैंने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने को कहा, न्यूमेरिकल टाइप में बोलेगा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बस यही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। द masses are the same, distances are the same, there are 5 particles, there are 4 particles, there are 10 particles, so आपको वहाँ पे
लगा देना है फार्मूला, आपका आंसर यहाँ से बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीपी सॉल्व करनी तो आती है ना, हम मैथ्स थोड़ी पढ़ाने बैठूंगा यहाँ पे। जीपी सॉल्व कर लेना भाई, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन नीट में कम आता है, जेई में आता है, क्योंकि जेई में इनको पता भी है कि जेई वाले मैथ्स पढ़ के आए हैं। सो आप मैथ्स पढ़ी हुई है आपने, सो यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ जी, ठीक है। बढ़िया है सब, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, अनदर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि ये वाला क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से डायरेक्टली लिंक नहीं है, मतलब है ग्रेविटेशन का ही, लेकिन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन स्मॉल जी। यू नो स्मॉल जी का फॉर्मूला? इफ यू डोंट नो आई विल राइट हियर, बट यू शुड नो बिकॉज इन क्लास 9th this is there. So g equals to capital G into m upon radius square. This is very very important. In this chapter you will find out that this is actually the gravitational field. Yes, but that we will talk in the later lectures. तो अभी के लिए याद रखो कि g क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं अगर बताऊँ कि ये क्लास 9th का वन ऑफ द वेरी वेरी हॉट्स कैटेगरी में आता है, वन ऑफ द वेरी वेरी हॉट्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन में आता है क्लास 9th में। सो इन क्लास 11 दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी ईजी एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन जेई, फॉर दैट इट इज़ वेरी वेरी ईजी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके लिए मीडियम लेवल का हो। सो इसको देखते हैं क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन ना रिलेटिव होता है, क्लास 9th के बच्चे के लिए वो क्वेश्चन देखो हॉट्स के लेवल का है, क्लास 11 के मीडियम में, क्लास 13 जो कि जेई होता है तो उसमें क्या है ईजी, बिल्कुल ईजी। सो ये रिलेटिव चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करो कि भाई क्लास 9th का हॉट्स है तो मान लो भी हॉट्स ही होगा, नहीं, आपके लिए वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर ये फॉर्मूला पता है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है, काम हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज अ बॉडी वेज और वेट पता है क्या होता है? वेट अगर आपको पता है, केमिस्ट्री वाला नहीं, फिजिक्स वाला। अब बॉडी वेज 90 kgf, ये बताऊंगा क्या होता है kgf, ये वो वाला kgf नहीं है, kgf ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। how much it will weigh on Mars whose radius is चलो पहले मास लिख देते हैं, whose mass is 1/9 and the radius is 1/2 of that of the earth। बहुत इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्लास 11th का बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ लिख देता हूँ, इसको काटा मारो, कॉन्फिडेंस लूज करोगे अपना। क्लास 11th के लिए इजी है, इसको देखो, ठीक है। क्लास 11th के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक। चलो सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में समझने वाली हैं, 3 चीज़ें। पहली ये मैंने आपको बता दी, दूसरी ये क्या होता है, वेट। डू यू नो द फॉर्मूला फॉर वेट? वेट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, यस। एंड ये क्या होता है, kgf, kgf मीन्स किलोग्राम फोर्स, मीन्स 900 न्यूटन। 1 kgf मीन्स द फोर्स ऑन 1 kg मास ओनली ड्यू टू अर्थ इज 1 न्यूटन। समझ में आ रहा है? 1 kg, सिंपल सा समझो, 1 kgf is 1 न्यूटन, सो 90 kgf 900 न्यूटन। नाउ एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर ये आपको kgf में दे रखा है ना, सो आपको आंसर भी kgf में लाना, ठीक है।
सो आंसर अगर आपका 400 न्यूटन आता है, 500 न्यूटन आता है, 800 न्यूटन आता है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू केजीएफ। करना क्या है, एक जीरो हटानी है बस, 10 से डिवाइड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। केजीएफ से न्यूटन में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, न्यूटन से केजीएफ में आने में 10 से डिवाइड। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक चीज़ पहले लेट कर लेनी चाहिए, सिंपल सी अलजेब्रा है बस ये, और कुछ नहीं है। सिंपल सा ना, पहले लेट कर लो चीज़ों को, मास को, रेडियस को, बाकी सब क्लियर। सो लेट मास ऑफ अर्थ बी कैपिटल एम, रेडियस ऑफ अर्थ बी कैपिटल आर। ठीक, सो मास ऑफ मार्स कितना हो जाएगा, मास ऑफ मार्स, राइमिंग स्कीम, वाह। सो मास ऑफ मार्स that is 1 by n of m, that is m upon 9। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ है ये। एंड रेडियस ऑफ मार्स बिकम्स r by 2, हाफ हो जाएगा, यहाँ है 1 by 9। ठीक है, क्लियर है? सो ये सब चीज़ें आ गई आपके पास। सो अब हमें बस करना क्या है, अगर अर्थ पे ये 90 kgf है तो मार्स पे कितना kgf होगा, बस ये निकालना है और कुछ नहीं करना। ठीक, सो वेट होता क्या है, वेट होता है मास टाइम्स ग्रेविटी। ठीक है, मास टाइम्स ग्रेविटी। सो वेट ऑन अर्थ लेट्स से डब्ल्यू, जी ऑन अर्थ लेट्स से जी ए। ठीक, दूसरी तरफ वेट ऑन मार्स एम जी एम। ठीक, नाउ डिवाइड दिस बोथ इक्वेशन। क्यों डिवाइड करने को कह रहा हूँ, बिकॉज देयर इज अनदर फैक्ट। बहुत सारे फैक्ट्स है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है, बहुत सारे हैं बट बहुत इजी है। क्या है दूसरा फैक्ट इस क्वेश्चन की, मास कैन नेवर चेंज। ठीक है, क्लास 9th में आपने एक पूरा टेबल पढ़ा होगा, आपके कोई पेपर में आता था कि राइट डाउन 5 डिफरेंसेस बिटवीन वेट एंड मास। ठीक है, मून और अर्थ वाला जो केस था उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए होंगे आपके टीचर्स ने, आपने करे भी होंगे। सो डिवाइड करो इन दोनों इक्वेशंस को, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एम एम तो कट जाएगा पहले ही। ठीक, सो डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम बिकम्स जी ई अपॉन जी एम। ठीक है, डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम बिकम्स जी ई अपॉन जी एम। ठीक, ये आ गया। अब आगे जी ई इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, जी ई की वैल्यू वही है, एम मास है, रेडियस आर है, फॉर्मूला मैंने बता दिया था। ये आ गया जी ई डिवाइडेड बाय अब मार्स के लिए जी तो सेम ही है, जी इज कॉन्स्टेंट। नाउ मास ऑफ मून इज एम ओवर 9 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, आर स्क्वायर बाय 2 लिख देते हैं, बहुत दिक्कत है ये। आर स्क्वायर बाय 4 लिखो गया, आर बाय 2 का होल स्क्वायर लोगे ना, तो आर स्क्वायर बाय 4। यहाँ गलती नहीं करनी है, सावधान रहिए। ठीक है, बस अब डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करोगे तो जी टू जी गेट कैंसल्ड, एम टू एम गेट कैंसल्ड, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मिल जाएगा। सो क्या रह जाएगा आपके पास, अगर आप देखो यहाँ पे, सो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मैं इन सब चीज़ों में बहुत वीक हूँ, पहले बता दूँ, सो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। जी एम अपॉन 9, जी एम से जी एम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। सो इसको हम अगर देखें, 4 यहाँ है, 1/4, 9/4 आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 9/4। ठीक, तो डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम इज इक्वल्स टू 9/4। ये निकाल रहे थे हम, डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम 9/4 आ गया। डब्ल्यू ई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, क्या है डब्ल्यू ई, 90 kgf डाल दो यहाँ पे। सो 90 kgf डाल दी हमने अपॉन डब्ल्यू एम, सो दैट बिकम्स 9/4, 10 टाइम्स कट गया। सो डब्ल्यू एम की वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू एम की वैल्यू आ गई 40 कि क्या आई, 40 kgf। ठीक है, तो हमें kgf में चाहिए था, तो kgf में हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको पहले न्यूटन में कन्वर्ट करते तो यहाँ पे आंसर आपका 400 आता। इफ़ यू सी 90 का 900 हो जाता, देन 9 to 900 400 आता, बट
कोशिश करिए 400 न्यूटन पे आंसर मत छोड़िए, बिकॉज इन क्वेश्चन यू आर गिवन दिस, टीचर आपका हाफ मार्क काट सकता है। तो 40 के जी एफ लिखिए आप, ठीक है, 40 के जी एफ, यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 40 के जी एफ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत क्लियर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बता दीजिए मुझे। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज वेरी वेरी दिलचस्प, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई एम टेकिंग टुडे। मेरा बहुत मन कर रहा है ऐसे क्वेश्चन लेने का। आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समथिंग, 4 है ना, 4th क्वेश्चन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई एम वेरी अमेज्ड दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन is asked in central schools, that is school examination 2009, and this type of question is basically a J level question, not a NEET level also. NEET में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखते हैं इसको, अगर ये स्कूल में वाले बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सो इफ द रेडियस, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इफ द रेडियस, आई होप यू वोंट सी दैट, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ shrinks by 2%, mass remaining constant, mass is constant, then the value of acceleration due to gravity change, then how would the value of acceleration due to gravity change? मतलब we have to find the percentage increase decrease जो भी है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, तो वो वी हैव टू परसेंटेज चेंज। अब इंक्रीज डिक्रीज हम बाद में देखेंगे वो कैसे आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन स्मॉल जी, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस। बेसिकली व्हाट वी आर गिवन इज दैट, देखो जी के लिए क्या चाहिए होता है, जी स्मॉल जी के लिए दो चीज़ें चाहिए, वन इज रेडियस, अनदर इज मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट। सो मास ऑफ द प्लैनेट गिवन इज कॉन्स्टेंट, radius of the planet given as 2% reduce, 2% reduce, shrinks by 2%, ठीक। सो अगर 2% वो रिड्यूस हो जाता है तो जी के साथ क्या होगा। सबसे पहले ये देख लो कि ये परसेंटेज इंक्रीज जाएगा या डिक्रीज जाएगा, वो हमें दिखेगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इफ आर इज डिक्रीजिंग, आर डिक्रीज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, therefore g will increase, r डिक्रीज हो रहा है ना, इन्वर्स रिलेशन है, जी एम कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है। सो डेफिनेटली चेंज जो परसेंट में आएगा वो इंक्रीज में आएगा, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि वो इंक्रीज कैसे करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि डिक्रीज नहीं कर सकता, मतलब अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ गया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में आना चाहिए आंसर। चलो उसको हम करते हैं, कैसे करें। देखो इसको करने का ना सबसे अच्छा तरीका क्या है, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक ही हमें प्लैनेट की बात दे रखी है, पिछले में क्या था, दो अलग अलग प्लैनेट की बात दे रखी थी, इसमें क्या एक ही प्लैनेट में इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम। देखो इसको सबसे अच्छा करने का तरीका क्या है ना, दोनों साइड लॉग ले लो। क्यों लेना है लॉग बताता हूँ, पहले लॉग लो, ठीक है, लॉग लो। और बेस की चिंता मत करो, बेस 10 ले लो, जो नहीं ले लो, बेस की चिंता मत करो कि बेस हर जगह सेम ही होगा। इफ़ यू डोंट नो लॉग प्लीज़ डोंट सी दिस क्वेश्चन, ये आपको किसी काम का नहीं है। इसको अलग मेथड से करने की कोशिश करना आप खुद से, वो पूरा आपको फिर परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज ये सब वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स में ज़्यादा जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा आएंगी, सो दैट बिकम्स वेरी वेरी क्लमजी। यस, सो लॉगरिथम वैसे आप सीख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है। सो मैं भी सिखाऊंगा अगर मुझे टाइम मिला तो, कैलकुलस तो करवा ही रहा हूँ मैं, सो दैट वे। सो लॉग ले लो दोनों साइड, बेस छोड़ दो, बेस को भी ले लो। सो दिस बिकम्स लॉग जी, लॉग जी। और देखो लॉग के मैं थोड़े बहुत फंडे बता देता हूँ। देखो मल्टीप्लाई में, लॉग मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस में होता है, डिवाइड में क्या माइनस में होता है, ठीक। सो अगर जब आप करोगे लॉग, चलो पहले ये ऐसे लिख देते हैं, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता, ऐसे करते हैं, ठीक है। लॉग ले लिया दोनों साइड, बेस की चिंता मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेस दोनों के साथ सेम है, सारी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो, ठीक है। लॉग इज़ नथिंग बट सारी प्रॉपर्टीज उसकी एक तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आप 6th 7th 8th में पढ़ते आ रहे हो,
एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो लॉग जी, अब देखो लॉग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका डिवीजन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में लॉग ऐड होते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट, सेम एज पावर्स, पावर्स भी ऐसी होती हैं। सो दिस बिकम्स लॉग कैपिटल जी प्लस लॉग कैपिटल एम, दोनों मल्टीप्लाई में थे, माइनस क्योंकि ये डिवाइड में है लॉग आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वरना मैं सीधा यहाँ से यहाँ अगले स्टेप में आ रहा हूँ। अगर आपकी पकड़ है ना लॉग में तो बहुत आसानी से हो जाता। अब देखो लॉग की एक और प्रॉपर्टी याद रखो, लॉग की एक और प्रॉपर्टी क्या है, ये जो ये चीज़ होती है ना, अभी भूल जाओ इसको क्या कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको भी कुछ कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखो। क्या है, इस पर जो भी पावर होती है ना, जो भी पावर होती है, पावर सामने आती है। ठीक है, पावर को हम सामने ला सकते हैं या सामने वाली पावर को चढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके साथ भी ऐसे ही करो, 2 को बाहर ले आओ, 2 लॉग आर। ठीक है, 2 लॉग आर। समझ में आया यहाँ तक? मैं सीधा यहाँ तक आ सकता था अगर आपकी लॉग में अच्छी खासी पकड़ है। ठीक है, सीधा यहाँ से सीधा यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल सी चीज़ करनी है। ठीक, सिंपल सी चीज़ क्या करनी है बताता हूँ। देखो भैया, जी और एम दोनों कांस्टेंट है, पक्के से जी और एम दोनों कांस्टेंट है, बदलाव हो रहा है स्मॉल जी कैपिटल आर के बीच में। ठीक ठीक, अब हमें एक चीज़ आपने पढ़ी होगी एरर्स में, कुछ पढ़ा है एरर में? एरर डिलीट है मुझे पता है, बट फिर भी पढ़ लेना चाहिए था आपको। सो एरर में क्या होता है, एरर में कुछ ऐसा होता है ना, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर, है ना? याद है ये चीज़, याद है, चेंज इन द वैल्यू अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, दैट इज द थिंग। नाउ दिस एंड दिस आर कांस्टेंट, सो इनमें तो कोई चेंज होगा नहीं, कोई एरर होगी नहीं, बट इसमें और इसमें हो सकती है। सो हम इसमें और इसमें एरर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें डेल्टा आर कुछ है ही नहीं, तो 0 0। सबसे पहले यहाँ लिख दो 0 0, मैं बेसिकली कर रहा हूँ एरर लगा रहा हूँ यहाँ, ठीक है, एरर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हैं इसको, बात तो सेम ही रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई, बड़ी बातें क्लियर हो रही हैं। इतना बढ़िया क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ये आज का सबसे टफ क्वेश्चन है। ठीक है, लॉगरिथम भी लग रहा है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन भी लग रहा है, एरर भी लग रही है, सब कुछ लग रहा है, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज तो लगी रही है। 0 0, अब ये क्या आ जाएगा, डेल्टा जी बाय जी। ठीक है, डेल्टा जी बाय जी, डी जी बाय जी भी लिख सकते हो, वो जब डिफ्रेंशिएशन करो। ये मैंने एरर वाला लगाया, कुछ भी लगा सकते हो। तो डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू 0 प्लस 0, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट वैल्यूज है ये, माइनस 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 के बाद यहाँ पे कोई चीज़ करनी है, 2 सामने ही रहेगा, डेल्टा आर अपॉन आर, सिंपल सी चीज़ लगेगी। ठीक, सो दिस बिकम्स डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स टू डेल्टा आर बाय आर। ये क्वेश्चन आ गई आपके पास, बढ़िया सी। ठीक, बढ़िया सी क्वेश्चन आ गई। आपको क्या करना है, गिवन कंडीशन को अब हम यूज़ करेंगे। ये गिवन कंडीशन थी, इसको तो यूज़ करा ही नहीं हमने, अब इसकी बारी है यूज़ करने की। ठीक है, देखो भैया, डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय आर कितना आएगा, ध्यान से सोचो। डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%, ये 2 होता है, दे रखा है, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये 2 है। सो 100 को हम इस तरफ ले जाते हैं, ये देखो 100 को हम इस तरफ नीचे ले गए, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बिकॉज दिस डिक्रीजेज, श्रिंक्स, डिक्रीज कर रहा है वो, तो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस में जाएगा। देखो डेल्टा आर क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आर इनिशियल बड़ा होगा, आर फाइनल छोटा होगा ना, श्रिंक हो गया ना, फाइनली वो श्रिंक कर गई अर्थ। फाइनली 6400 किलोमीटर होता है, उससे कम होकर 2% कम होगी, तो फाइनली कम हो गया, इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, तो माइनस में जाएगी ना चीज़ें। ठीक है, ये मुश्किल मेथड है, मुझे पता है मुश्किल है, बट कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं है। नहीं तो अगर आप दूसरे मेथड से जाते हैं तो यू हैव टू कैलकुलेट जी, कैपिटल एम, कैपिटल आर, पता नहीं क्या क्या करते हैं वहाँ पे, तब जाके आंसर आता। ठीक है, तो वो तो वही महान लोग करते हैं ऐसी चीज़ें,
हम लॉग जानते हैं तो हम लॉग से करेंगे, ठीक। और हम एरर भी जानते हैं तो एरर से भी करेंगे। नहीं तो दोनों चीज़ें अगर हम नेगलेक्ट करके करते हैं ना तो हमें सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डालनी पड़ती है इसके अंदर, वो तो भाई हो ही नहीं सकता, कैलकुलेटर कर सकता है वो चीज़ें। तो डेल्टा आर बाय आर आपका -2/100 आ गया, यहाँ पुट कर दो डेल्टा आर बाय आर -2/100, तो डेल्टा जी बाई जी आ जाएगा, वही हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ठीक है, यही चीज़ हमें तो चाहिए। डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स -2/100, माइनस माइनस कट गया, 4/100, मतलब अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये कितना आ गया, 4% आ गया ना। अरे आ गया कि नहीं आ गया, ये 2% था, तो जब मैंने डेल्टा आर अपॉन आर वाली फॉर्म में लिखा तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, अब ये 4/100 आया, तो मुझे परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4% आ जाएगा। समझ में आया। और ये 4% प्लस में आया, अपने आप आया, मैंने तो कोई प्लस नहीं लगाया, अपने आप प्लस में आया, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये लॉजिक बिल्कुल मत लगाना, ये बिल्कुल लॉजिक मत लगाना कि अरे ये देखो ये 2 है, यहाँ पे स्क्वायर वाला रिलेशन था, इन्वर्स स्क्वायर, तो ये इन्वर्स स्क्वायर से ऐसे हो गया। शायद हो सकता है ये हर क्वेश्चन में ना हो, मुझे पता नहीं है, शायद हो सकता है हो, शायद हो सकता है ना हो। आप रिसर्च करो इस पर, ये अलग अलग वैल्यूज़ लो, इसकी 3% ले लो एक बार, 4% भी ले लो, देखो कि ऐसे आंसर आता है कि नहीं आता। अगर आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये एक ट्रिक बन जाएगी आपकी, ठीक है, ट्रिक भी बन जाएगी, लॉन्ग मेथड भी आता है आपको। समझ में आया क्या करा मैंने, वो फिर से समझना है। देखो भैया, लॉग लगाओ दोनों साइड, ये वाला पहला स्टेप, लॉग लगाया दोनों साइड, उसके बाद लॉग वाली प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करा, मल्टीप्लाई पे लॉग ऐसे टूटता है, प्लस में, डिवाइड में, माइनस में, पावर बाहर आ जाती है। उसके बाद ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका जो चेंज होगा, तो एरर आएगी इनमें, वो ज़ीरो आएगी। इसमें एरर डेल्टा जी बाई जी, उसमें एरर डेल्टा आर बाई आर, -2 मल्टीप्लाई में ही है। अब डेल्टा आर बाई आर में क्या दे रखा है, 2%, तो जब मैंने 100 को वहाँ ले गया मैं, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 वो परसेंटेज एरर होती है। सो डेल्टा आर बाई आर क्या हो जाएगा, 100 को वहाँ ले जाओ, -2/100, उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पुट कर दिया, सो -4/100 आ गया। लेकिन ये क्या है, डेल्टा जी बाई जी मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो 4%, ठीक है, समझ में आ गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छे लेवल का, स्कूल लेवल का क्वेश्चन था भाई साहब, स्कूल लेवल में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मतलब वारे में आ रहे हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन करें क्या, टाइम कितना हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया वैसे तो। चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, मैंने वैसे वो क्वेश्चन कराया भी हुआ है अपने एक लेक्चर में, क्योंकि मैंने पहले भी एक ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल लेक्चर लिया था, तो आप कर लो, ट्राई करके देख लो वो भी। तो वही वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लिख लो। टू पार्टिकल्स each of mass small m go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitation attraction, find the speed of the particle। ठीक है, स्पीड वाला क्वेश्चन है, दिल्ली 17 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये जेई लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरिएशन है इस क्वेश्चन की, मैंने बताया भी हुआ है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अपनी एक अलग वीडियो में, तो आप वीडियो सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, अगर आपका आंसर मैच करके अच्छी बात है। आपका जो वी आएगा वो अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम अपॉन 4 इंटू कैपिटल आर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया, आंसर नोट कर लिया, आप सॉल्व करो, आंसर मैच कराओ, कमेंट्स में मुझे बताओ कैसे क्वेश्चंस लगे आपको। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे केप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। थैंक यू।